All right, so in the last lecture, we have talked about the advantages and disadvantages of written communication. Moreover, we discussed the essentials for effective written communication. So these were the advantages and disadvantages of written communication. Advantages were that परमानेंट रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, इट इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड और हम एडवांस में कंपोज करके रख सकते हैं. एंड मोर ओवर एक्यूरेसी बढ़ जाती है बिकॉज वी कैन ऑलवेज मेक करेक्शंस. हम उसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं हम कंपोज करके आफ्टर कंपोजिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और द वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू समबडी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. वाइड एक्सेस होता है, इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स है होते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस एंड इट स्टेज विद यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. If we talk about the disadvantages, इसमें था कि it is time consuming. It is time consuming sometimes. It is not time consuming always. It depends on the mode and the situation. Then it is not suitable for illiterate. The people who cannot read and write, उनके लिए it is not beneficial. Formal communication होती है mostly इसमें. Immediate feedback जो है वो possible नहीं होती कुछ situations में, depending upon the mode. Expensive hota hai because you might need the entire uh, setup for that, the gadgets which are involved in it. So it may end up being really costly. It is difficult to maintain secrecy because if when everything is in written form, so situation may you cannot have secrets. So lack of flexibility. Then there is delay in decision making. So all of these were the advantages and disadvantages of written communication. Now we are going to talk about the types of written communication. So all of these are what these are the types of written communication. First is letters. Letters जो है हमारे पास different types के letters होते हैं. Letters can be for asking for quotations. Business letters हो सकते हैं. आपके थोड़े जो आप the ones that you send to your family members and friends. We have a different type for them. So similarly हमारे पास बहुत तरह के letters होते हैं. It depends कि क्या situation है और किस purpose के लिए आप letter लिख रहे हो. So लेटर राइटिंग में भी हर एक चीज जो होती है वो रिटन फॉर्मेट में होती है. यू राइट डाउन एवरीथिंग एंड देन यू सेंड द लेटर टू the receiver. When the receiver receives it, and then the receiver can read the entire thing. Next is proposals. Proposals क्या होता है बच्चे, when you are in an organization, आप अपने वर्क प्लेस पे हो, तो क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टास्क को इनिशिएट करना है, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द इंस्टीट्यूट ओनली. सो अगर इंस्टीट्यूट में इफ आई वांट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक इवेंट करवाऊँ, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होता है. ठीक है, उस प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे परमिशन लेनी है अपने हायर अथॉरिटी से दैट आई वांट टू कंडक्ट दिस इवेंट इन द कैंपस. सो व्हेन आई वांट परमिशन फॉर दिस इवेंट, मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक प्रपोजल चाहिए होगा. ठीक है, प्रपोजल मैं बनाऊंगी, उसमें मैं सारी चीजें लिखूंगी दैट आई वांट टू कंडक्ट दिस इवेंट ऑन दिस डेट. The students of these classes are going to participate, right? And this is what is all going to happen in that event. उसके सारे details मैं mention करूँगी. The budget जो चाहिए होगा उस event के लिए, I'm going to mention all the details of the budget as well. ठीक है, so ये सारे क्या होंगे, this is going to be a proposal which I am going to forward it to my higher ups. So that is thing that is I am proposing. Okay, I want this thing to happen in the campus, right? So then the higher ups are going to read it. They might have a discussion on the same, and then they are going to approve or reject it. All right, या तो वो उस चीज को अप्रूव कर देंगे, वो परमिशन ग्रांट कर देंगे, या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे. So this is a proposal. When you write down everything that you want to happen in the campus, it is not only for the events, but if you wish to buy something in an organization, different purposes के लिए होते हैं proposals. So that is a basically, if you have an idea in your mind and if you want to put forward it to the higher ups, so that you write it down. That is a formal way of doing it. ठीक है, एक तो होता है कि आप सीधा जाके oral communication कर रहे हो
and then you're having a discussion about it कि ठीक है मुझे I want that it should be done like that. आप डिस्कशन कर रहे हो, that is different. उसमें क्योंकि जब भी आप देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, you're working at some place, वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के बेसिस के ऊपर काम नहीं होते. You need a permanent record for each and everything. So in that situation, आपको हर एक चीज रिटन फॉर्म में करनी होती है. Because you need proofs, you need references, you need a permanent written record for everything that is happening. सो इस सिचुएशन में क्या होता है, सो आप वो हो सकता है आप ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हो, परमिशन वर्बली आपको मिल चुकी है, बट स्टिल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप उस चीज को दोबारा लिखोगे, तो दोबारा रिटन फॉर्म में एक परमिशन अपने पास लेके रखोगे दैट दिस वाज अ परमिशन व्हिच वाज ग्रांटेड टू मी बाय these people. So उनके signatures होंगे उसके ऊपर, so that is going to be a proof that this was a proposal was sent and permission was granted or permission was rejected. Is that clear? So this is what is a proposal. When you want something, you want to do something, you want to buy something. So what you do is you write down a proposal and then you forward it to your higher ups. So next one is technical articles. Articles के बारे में तो आपको पता ही होगा. There are articles which are जो हमारे न्यूज़पेपर में भी आते हैं. Moreover आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है ब्लॉग्स का. So people write down their articles and they post it on internet. ठीक है, वो blogs हम उनको नाम देते हैं. So you can read out their articles online. Next is facts. Facts, although because we have new technology with us, हमारे पास technology में इतनी innovations हो चुकी है that we hardly use these machines like facts. Although it is not like that कि ये इनका यूजेज जो है वो बिल्कुल ही नील हो चुका है. इट इज नॉट लाइक दैट. वी डू यूज फैक्स मशीन दीज डेज, बट जो आई वुड से जो जितना ज़्यादा हम पहले यूज़ करते थे उतना फ्रीक्वेंटली अब हम नहीं यूज़ करते फैक्स मशीन को. तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें इफ़ यू वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू समबडी, ठीक है, बट वो एक्सेसिबल नहीं है पर्सन, दैट पर्सन इज इन अ डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री, तो फिर आप क्या करोगे, यू कैन यूज दिस मशीन कॉल्ड फैक्स. बट इसका लिमिटेशन क्या होता है दैट दोनों एंड पे जिसने भेजना है और जिसके पास रिसीव होना है, दोनों एंड पे फैक्स मशीन रिक्वायर्ड है. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक the other technologies that we are using. So if I want to send a WhatsApp message to somebody, तो उसकी अब मेरे पास भी एक सेल फोन होना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेट होना चाहिए एंड व्हाट्सएप जो ऐप है वो होना चाहिए. सिमिलरली जो रिसीवर है उसके पास भी एक सेल फोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और जो ऐप जिस ऐप पे मैं सेंड कर रही हूँ वो सेम ऐप उसके पास होना चाहिए. So it is just like that you need these gadgets, you need these machinery on both the ends. ठीक है, जो कि कभी कभी we can say it is a sort of a limitation. Then जो fax machines होती हैं, how do they work? इसमें क्या करा जाता है, I will the document I want to send, ठीक है, वो fax machine में insert करा जाता है, फिर codes होते हैं जो वहाँ पे टाइप करे जाते हैं, और फिर सेम डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे एंड पे रिसीव हो जाता है. ठीक है, मतलब उसकी कॉपी होता क्या है, स्कैन करा जाता है सारा का सारा डॉक्यूमेंट और उसकी सेम कॉपी प्रिंट हो जाती है दूसरे एंड में. राइट. नेक्स्ट वन इज टेलीग्राम्स. टेलीग्राम्स के बारे में भी आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा. तो टेलीग्राम्स क्या होते हैं, दिस इज अगेन mode of communication, right? And it is a written mode of communication where you write down your message and you send it to the person, and this was the fastest means to communicate. ठीक है, जब तक हमारे पास इंटरनेट, सेल फोन, ये सारी चीजें नहीं थी, तब तक सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था हमारे पास, टेलीग्राम. और टेलीग्राम कैसे वर्क करता था, इट यूज टू वर्क विद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, सैटेलाइट की हेल्प से. तो टेलीग्राम में क्या होता था, आपको चार्ज करा जाता था फॉर ईच एंड एवरी वर्ड, राइट, इफ यू रिमेम्बर. सो आप इसमें एक कंडीशन होती थी दैट यू हैव टू राइट डाउन योर मैसेज इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, राइट. हमें वर्ड लिमिट दी जाती थी दैट यू कैन नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड्स व्हेन वी यूज्ड टू राइट इट
डाउन अपने positions में. So telegrams में क्या होता है that you are charged for each and every word. So whenever you write something, you have to make sure that you just write down the crux of the thing. या आप जो भी important चीज है, सबसे important चीज आप वो mention करो. So if you have to tell that your father is not keeping well and you should come, so instead of mentioning everything, आप कम से कम वर्ड्स में मेंशन करते थे. फादर नॉट वेल, कम होम, बस इतना मेंशन कर देते थे, राइट. सो टेलीग्राम्स जो हैं ये सैटेलाइट के थ्रू भेजे जाते थे. सो सेम चीज दूसरे एंड पे प्रिंट करके रिसीवर तक पहुंचा दी जाती थी. तो ये सबसे फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था पहले, पर अभी नहीं है. और अभी भी टेलीग्राम जो है वो यूज करे जाते हैं, बट जो सेम जैसे फैक्स हम बहुत कम यूज करते हैं, टेलीग्राम भी हम बहुत कम यूज करते हैं. बट देयर आर फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जिस जगह पे अभी भी टेलीग्राम्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स. ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. whenever you ओपन योर न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो बहुत बार उसमें छोटे छोटे पैम्फलेट्स होते हैं, राइट. उनमें क्या होता है? उनमें एडवर्टीजमेंट होती है. कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई शॉप है, कोई स्टोर है, तो उनकी एडवर्टीजमेंट होती है. एंड दे आर मेड वेरी प्रेजेंटेबल और बहुत अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, बिकॉज दैट इज अ वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट. अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का एक तरीका है. All right, Harbhajan, I've got your message, बच्चे. थैंक यू मैम, अटेंडेंस ला दे, थोड़ा लेट हो गया. सो ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स क्या होते हैं? इसमें हम एडवर्टीजमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट, और या फिर अपने प्रोडक्ट को यू मार्केट योर प्रोडक्ट. सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. लोगों को पे करा जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करके आए, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करके आए, या अगर किसी जगह पे कोई मास गैदरिंग है उसके बाहर जाके जब भी लोग एंटर या एग्जिट कर रहे हैं वहाँ पे ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएं. डिफरेंट तरीके हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स. आवाज में बाकी सबको भी प्रॉब्लम आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस मैम, आ रही है बात. हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम आ रही है. ऑल राइट. सो आई होप ब्रोशर्स एंड लीफलेट्स समझ आ गया है सबको, राइट. सो एक तरीका है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आप डिस्काउंट्स या ऑफर्स मेंशन कर सकते हो ताकि यू कैन अट्रैक्ट योर कस्टमर्स एंड यू कैन ब्रिंग योर कस्टमर्स टू योर स्टोर और द शॉप. ठीक है. दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चले कि दिस थिंग एग्जिस्ट, कि ये स्टोर या ये शॉप या ये कंपनी इट एग्जिस्ट. तो लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, so there are different ways for it. और ब्रोशर्स, लीफलेट्स एक है उसमें से. ब्रोशर्स बोलो, लीफलेट्स या पैम्फलेट्स, दे आर सेम ही होते हैं सारी चीजें. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेस रिलीज. तो प्रेस रिलीज क्या होते हैं? जो हम न्यूज आप पढ़ते हो, तो अगर किसी जगह पे कोई इवेंट हुआ, उसकी कवरेज जो हम बना के देते हैं, दैट व्हाट ऑल हैपेंड इन दैट इवेंट. क्या क्या चीजें हुई, हु वाज द चीफ गेस्ट, व्हाट वाज दैट इवेंट अबाउट, उसमें क्या क्या हुआ. फिर अगर कंपटीशन था तो किस किस को कंपटीशन में क्या किसके पोजीशंस आए हैं, वो सारी चीज़ों को जब हम बना के देते हैं, we compose each and everything, the details, the coverage of the entire event, and then we hand it over to the person who is concerned and who is going to print it in the newspaper. So that is what that is, a press release. So that is a sort of a news that we are giving in the newspaper. नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स के बच्चे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं. इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक.
ऑर्गेनाइजेशंस में जो होती हैं वो लोगों के जैसे द एम्प्लॉइज, उनके रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। हम कोई ऑडिट हमने करनी है, हम उस चीज़ का भी रिपोर्ट्स बनाते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, तो मीटिंग्स को, जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुई होती है उसकी हमेशा रिटन फॉर्म में एमओएम बनते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं। ठीक है, कि मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी और उनकी भी रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, किस किस जगह पे खर्च हुए हैं, उसकी रिपोर्ट, या बजट रिपोर्ट, या फिर कोई एनुअल रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, कि एक साल के बाद ये चीज को इवेलुएट करना है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, और इनके यूजेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिपेंड्स ऑन कि किस पर्पस के लिए हमने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। ठीक है, रिपोर्ट्स में भी सारी चीजें रिटन फॉर्म में होती हैं। डिटेल्ड भी बहुत हो सकती हैं, कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करके, राइट, जब आप प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर कस्टमर्स, ठीक है, तो आप कस्टमर्स के बारे में जब बात कर रहे हो, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो आप उस चीज़ के लिए भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। आप यू टेक द रिस्पॉन्सेज ऑफ द कस्टमर्स जो आपसे हर रोज डील करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है कस्टमर्स को, क्या चीज़ बुरी लगती है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिपोर्ट। इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू वर इन स्कूल, तो आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो मीटिंग में एक रिपोर्ट आपकी दी जाती थी, राइट, दैट हाउ इज द स्टूडेंट, आपका रिपोर्ट कार्ड। हाँ जी, क्वेश्चन बच्चे, आई गॉट योर मैसेज, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो जब आप स्कूल में होते हो, तो आपकी एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है, उसमें हर एक चीज मेंशन होती है कि ओवरऑल स्टूडेंट कैसा है, क्या क्या इसमें पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो एवरीथिंग इज डिटेल, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट ओनली, दैट इज अ रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो वो हो सकता है एवरी मंथ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, सो वो क्या हो जाएगी, वो एक मंथली रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सर्कुलर, और उसके नेक्स्ट है नोटिस। सो सर्कुलर्स एंड नोटिसेस, दे आर समवॉट सिमिलर, इन फैक्ट जो ओनली डिफरेंस आई वुड से इज, नोटिस तो सबको पता ही होंगे क्या है। तो अगर आपने किसी चीज की अनाउंसमेंट करनी है, तो आप एक तो ओरली कर सकते हो सबको गैदर करके, या फिर आप रिटन फॉर्म में कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द अनाउंसमेंट, और आप उसको नोटिस बोर्ड पे क्लिप कर देते हो, ताकि जो भी वहां से गुजरे वो नोटिस को पढ़ के जाए, और इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्प्रेड हो जाती है। तो नोटिस क्या करते हैं हम, वी फ्लिप इट ऑन अ नोटिस बोर्ड। बट सर्कुलर्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स आर आल्सो सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स, या आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज के बारे में, किसी भी, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, बट वो पर्सन टू पर्सन सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास आया सर्कुलर, तो इसमें एक लिस्ट अटैच होती है कि सर्कुलर किस किस के पास जाना है। ठीक है, तो एक टीचर के पास आया, सो आई रीड इट, मुझे वो मैसेज मिल गया, सो आई पुट माई इनिशियल्स, मैं अपने सिग्नेचर्स कर दूंगी अपने नाम के आगे कि आई हैव रेड इट। ठीक है, फिर उसके बाद वो सर्कुलर किसी और के पास जाएगा जिसका नाम है उस लिस्ट में। ठीक है, फिर दूसरे मैम का नाम होगा तो वो दूसरे के पास जाएगा, तो वो भी रीड कर लेंगे इन्फॉर्मेशन को और साइन कर देंगे कि ओके आई हैव रेड द मैसेज। सो सिमिलरली वो सर्कुलर क्या होता है, वो पर्सन टू पर्सन ट्रैवल करता रहता है। मेमोज भी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, ये अनाउंसमेंट्स, या कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए जब कोई इंफॉर्मेशन होती है तो हम डायरेक्ट मेमोज भेजते हैं। मेमोज को मेमोरेंडम्स भी कहते हैं। मेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। ठीक है, मेमोरेंडम्स बोला जाए या मेमोज बोला जाए, सेम ही चीज है। तो किसी का सपोज अप्रेजल हुआ है, या किसी का कोई देयर वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी, या किसी ने कोई ड्यूटी नहीं करी, सो उनको डायरेक्ट मेमो भेजा जा सकता है दैट यू वर एब्सेंट फ्रॉम योर ड्यूटी, सो यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू मी इन द रिटन फॉर्म। सो ऐसा डायरेक्ट जो मेमो है वो भेजा जा सकता है। तो उसमें दोनों चीजें मेंशन रहती है, टू एंड फ्रॉम, कि किसने भेजा है और किसको भेजा है। So these are what? These are memorandum. Last one is
ईमेल्स के बारे में भी हम सबको पता है, तो आजकल हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस भी आ सकते हैं। ईमेल्स, आई होप यू ऑल हैव योर ईमेल अकाउंट्स। तो अगर नहीं है तो काइंडली मेक वन फॉर्मल, जिसके ऊपर आपका फॉर्मल प्रॉपर नेम हो मेंशन, एक अपना ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ ईमेल एड्रेस अपना फॉर्मुलेट कर लो। सो ईमेल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज। इसके अलावा आप टेक्स्ट मैसेजेस हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आजकल। तो SMS है एक रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करने का, दैट इज अगेन अ टेक्स्ट मैसेज। तो या आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, हमारे पास फेसबुक मैसेंजर है, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स है टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। सो एप्लीकेशन भी एक टाइप हो जाता है, ठीक है। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द लेटेस्ट वन, और ये ऑलरेडी सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके अलावा हम ये सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हैं कि हम we can use these apps to communicate with somebody in the written form. Okay, so all of these are what? These are the types of written communication. Is there any doubt to anyone regarding this topic? None such. Fax machine बच्चे क्या होता है, दोनों एंड पे एक मशीन चाहिए होती है, ठीक है, जिसको हम फैक्स मशीन कहते हैं। मेरे पास भी है, और सपोज अगर आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो आपके पास भी वो होनी चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उस फैक्स मशीन में जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको भेजना, देखो अभी तो हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स विद अस। मैं आपको वो सेम चीज अपने फोन पे स्कैन करके आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ, आपको ईमेल भी कर सकती हूँ। बट जब हमारे पास ये तरीके नहीं थे तो हम फैक्स मशीन यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था, डॉक्यूमेंट जो है वो फैक्स मशीन में इंसर्ट करा जाता था और वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद एक कोड होता था, नंबर्स होते थे, वो टाइप करे जाते थे, उससे फिगर आउट हो जाता था कि ये किस मशीन पे जाके रिसीव होएगा, ठीक है। मैंने नंबर डायल कर दिया, नंबर डायल करा तो फिर दूसरे एंड पे वो सेम डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाता था। तो उस फैक्स मशीन में ब्लैंक शीट्स डाले जाते थे, ठीक है। तो वो प्रिंट होके उसमें से वो सेम डॉक्यूमेंट सेम तरीके का प्रिंट होके दूसरे एंड पे रिसीव हो जाता था। इज दैट क्लियर? Is that clear now, बच्चे? Yes, ma'am. All right. So any other? Yes, ma'am. हाँ जी। Can you repeat, please, बच्चे? मैम yes मैम क्या थी? Okay, clear है? All right. हाँ जी मैम। I am going to end this session here then. Thank you everyone for joining this class. We'll meet in the next one. Thank you, ma'am. Thank you.